Good morning, students, and welcome to your class again, where we were studying figure of speech. Okay, we have done a couple of figure of speech such as alliteration, repetition, hyperbole, metaphor, simile, all that. Now, today our topic is, in this figure of speech, we are taking the next, that is seventh one, tautology. 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 Tautology क्या है? It is an expression or phrase that says same thing twice just in a different way. मतलब ये ऐसा एक ही बात को बार बार दोहराना, अनावश्यक रूप से दोहराना, मतलब उसी बात को बार बार करना, ठीक है? और tautology, write a definition. Tautology is an expression or phrase. Expression means sentence, or phrase means a group of words, phrase. A tautology is an expression or phrase that says the same thing twice, just in a different way. Just in a different way. टॉटोलॉजी क्या है? एक्सप्रेशन है, एक सेंटेंस है या एक फ्रेज है जो एक ही बात को दो बार कहता है अलग अलग तरीके से, ठीक है? वैसे टॉटोलॉजी मतलब बहुत रिपीट करती है, इसको उतना अच्छा नहीं माना जाता, बट एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग. वी विल सी द एग्जांपल्स. First is, I will see the matter, M-A-T-T-E-R, matter personally. I will see the matter personally. यहाँ पर मैं इतना भी बोल सकती थी, I will see the matter. मैं मैटर देख लूँगी, क्या माजरा है मैं देखूँगी. मैं यहाँ पर खुद देखूँगी, मतलब ये जो पर्सनली है, ये आई और पर्सनली एक ही बात है और दो बार आई है वाक्य में अलग अलग तरीके से, ठीक है? सो दिस इज एग्जांपल नंबर 1. सेकेंड, द swampy rainforest has wet floor. The swampy rainforest have wet floor. Swampy means दलदली. Rainforest एरिया में जो ट्रॉपिकल एरियाज है, they have everyday rain, है ना? That is convectional type of rain. Everyday they have. Because of that the land becomes swampy. दलदली बन जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? the swampy मतलब दलदली रेन फॉरेस्ट जो है, उनकी जमीन जो है, फ्लोर जो है, वो वेट होती है. So swampy and wet are same things that are repeated in the sentence in a different way. Okay. Third example. I apologized because I was feeling sorry.
apologized because I was feeling sorry. मैंने माफी मांगी क्योंकि मैं बहुत मतलब शर्मिंदा महसूस कर रहा था. So apologized and sorry both are same thing but they are expressed here in different ways. So understood this example students. Tautology क्या है? एक ही बात को दो बार उस सेंटेंस में दोहराया जा रहा है अलग अलग तरीके से जिनका मीनिंग एक ही है. ठीक है. Now next we will see. You have to copy down this. I will write here next now. Next we are seeing climax. Eighth figure of speech, climax. Climax. Okay. So write definition. When words or ideas are arranged in the order of increasing importance, the figure of species climax. When words or ideas, words means शब्द, ideas means विचार, ऐसे अरेंज किए जाते हैं कि वो चढ़ते हुए क्रम में होते हैं तो वहां पर क्या होता है? क्लाइमेक्स. ओके. उनका इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस मतलब उनकी महत्व, उनका जो महत्व है वो हमको बढ़ता हुआ दिखता है. ये फिगर ऑफ स्पीच यानी ये अलंकार कहलाता है क्लाइमेक्स. राइट एग्जांपल्स. Good, wide, beautiful, wonderful, word. Second, he begs, B-E-G-S, he begs, he lies, he steals, he kills. For good. Okay, so good, wide, beautiful, wonderful word मतलब अच्छी, बहुत विस्तृत, बहुत सुंदर, बहुत आश्चर्यजनक दुनिया. Okay. Then he begs, he lies, he steals, he kills for gold. वो बैग करना मतलब भीख मांगना, he lies means झूठ बोलना, steals means चोरी करना, kills means खत्म कर देना. मतलब वो कितना बद से बदतर हो सकता है. गोल्ड मीन्स रुपए पैसे के लिए, संपत्ति के लिए वो क्या कर सकता है? भीख भी मांग सकता है, झूठ भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता है या फिर किसी को मार भी सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये है क्लाइमेक्स जहां पर हम आइडियाज या एक्सप्रेशंस को या वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज क्लाइमेक्स.
After this we will see anticlimax. That anticlimax we will see with another figure of speech in next period. So up to that you can take homework. So next, that is ninth. Ninth is anticlimax. इसके पहले हमने अभी क्लाइमेक्स पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एंटी क्लाइमेक्स। ठीक इसका अपोजिट है एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में क्या होता है, आप घटनाओं को, चीजों को चढ़ते हुए क्रम में रखते हैं और एंटी क्लाइमेक्स में उतरते हुए क्रम में। देखिए कैसे एंटी क्लाइमेक्स is opposite of climax. And signifies a descent from the higher to the lower. एंटी क्लाइमेक्स क्या है, अपोजिट है क्लाइमेक्स का। और किस बात की ओर विशेषता, किस बात का विशेष मतलब प्रस्तुतिकरण करता है, डिसेंट। डिसेंट यानी उतार, हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल्स। At one swell swoop, he lost his wife, his children, his house, and his dog. Okay, next is he was the wisest, he was the wisest, brightest, and meanest of all. ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ लीजिए। एट वन स्वेल सूप, एक ही झटके में उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर और अपने कुत्ते को खो दिया। देन सेकेंड, he was the wisest, brightest and meanest of all. वो बहुत, wisest मतलब बुद्धिमान, brightest मतलब इंटेलिजेंट एंड meanest मतलब लेकिन सबसे नीच निम्न प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु एक ऐसी महत्व उनका जो है वो पहले महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, मतलब ऐसे वाइफ, देन चिल्ड्रन, then house, then dog. So we are seeing here the things are represented here according to their importance, but in descending order. Okay, so ये examples आपको उधार लेना है and some you have to try by your own. Next we will see
Next is of last. We will see 10. After that, we will continue the study of textbook. Okay. So, onomatopoeia. E-O-E-P-O-E-I-A. ओके, इसका मतलब होता है हिंदी में ध्वनि सूचक. ध्वनि मीन्स साउंड. In onomatopoeia, the sound of different birds, animals and objects suggests the sense or meaning. मीन्स ओनोमोटोपोइया क्या है? साउंड के बारे में, ध्वनि की सूचना देता है. ठीक है, जहां पर भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों तथा वस्तुओं की ध्वनि की आवाज का अर्थ हमें पता चलता है. ठीक है. सो राइट द एग्जांपल्स. फर्स्ट, द cats meow. Second, bees hum. Third, the snake hisses in the bush. ठीक है. So what is how will you find figure of speech here? This onomatopoeia here, that is suggesting the sound. So here it is meow, here hum and here hisses. Okay students, so ये हमने 10 figure of speech पढ़े हैं. इनके जो हमने नोट्स आपको लिखाए हैं उनको पढ़िएगा, आपको हेल्प करेंगे पोएम में से फिगर ऑफ स्पीच समझने के लिए, ढूंढने के लिए. ठीक है. और आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना है और अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट करना है. बाकी हम अगले पीरियड में देखेंगे. फिर जल्दी मिलते हैं. ठीक है.